السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، صراط المستقیم چینل پہ پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت عنایت اللہ التمش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نومبر 633 کے دوسرے اور رمضان المبارک 12 ہجری کے پہلے ہفتے کی وہ رات بہت سرد تھی۔ بنی تغلب کی بستیوں میں اور فارس کی فوج کی خیمہ گاہ میں جو وسیع و عریض تھی، لوگ گرم بستروں میں دبکے ہوئے تھے۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ کون کیا خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایک کے ذہن پر مسلمانوں کی فوج اور اس کی دہشت سوار ہوگی۔ لوگ اسی فوج کی بات کرتے کرتے سوئے تھے۔ اچانک بستیوں کے گھروں کے دروازے ٹوٹنے لگے، گلیوں میں گھوڑے دوڑنے لگے۔ مجاہدین نے مکانوں سے چار پہیہ اور لکڑیاں باہر لا کر جگہ جگہ ان کے ڈھیر لگائے اور آگ لگا دی تاکہ بستیاں روشن ہو جائے۔ عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار نے سرد رات کو ہلا کر رکھ دیا۔ عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ باہر آ کر ایک طرف کھڑی ہو جائے۔ یہ مجاہدین کی للکار تھی جو بار بار سنائی دیتی تھی۔ بنی تغلب کے آدمی کٹ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا حکم تھا کہ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کے سوا کسی آدمی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ ان لوگوں کو وہ لشکر بچا سکتا تھا جو تھوڑی ہی دور خیمہ گاہ میں پڑا تھا۔ بستیوں کا واویلا لشکر تک پہنچا، لیکن وہاں نیند اور سردی نے سب کو بے ہوش سا کر رکھا تھا۔ لشکر کو جگانے کے لیے کوئی سنتری زندہ نہ تھا۔ آخر خیمہ گاہ میں کچھ لوگ بیدار ہو گئے۔ انہیں ارد گرد کی بستیوں میں روشنی نظر آئی، جیسے آگ لگی ہوئی ہو۔ شور بھی سنائی دیا۔ وہ ابھی سمجھنے بھی نہ پائے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کیسی ہی ہڑگوم خیمہ گاہ کے ایک گوشے میں برپا ہوئی جو آندھی کی مانند بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ کچھ خیموں کو آگ لگ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں نے آتش پرستوں کی فوج کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ یہ فوج اب کٹنے کی سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دشمن کے بہت سے سپاہی خیموں میں دبک گئے تھے۔ ان خیموں کی رسیاں مسلمانوں نے کاٹ دی۔ خیمے سپاہیوں کے لیے جال اور پھندے بن گئے۔ مسلمانوں نے انہیں برچیوں سے ختم کر دیا۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار بڑی دہشت ناک تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اتنے وسیع پیمانے پر شب خون مارنے کا دوسرا تجربہ ہوا۔ اب انہوں نے یہ انتظام کر دیا تھا کہ کسی کو بھاگنے نہ دیا جائے۔ بستیوں اور خیمہ گاہ کے ارد گرد مثنہ بن حارثہ کے گھڑ سوار گھوم پھر رہے تھے۔ کوئی آدمی بھاگ کے جاتا نظر آتا تو اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا جاتا اور برچی یا تلوار سے اسے ختم کر دیا جاتا۔ اگر کوئی عورت بھاگتی نظر آتی تو اسے پکڑ کر اس جگہ پہنچا دیتے جہاں عورتوں اور بچوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ جو رات گزرتی جا رہی تھی، بنی تغلب کی بستیوں میں اور مدائن کی فوج کی خیمہ گاہ میں شور و غوغا اور واویلا کم ہوتا جا رہا تھا اور زخمیوں کی کربناک آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو نکلے تھے، ان کی لاشیں ٹھنڈی ہو رہی تھی اور ان کے زخمی پیاسے مر رہے تھے اور ان کی بیٹیاں مسلمانوں کی قبضوں میں تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو اجالے نے بڑا ہی خوفناک اور عبرتناک منظر دکھایا۔ لاشوں کی سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ لاشیں خون سے نہائی ہوئی تھی۔ یہ فتح ایسی تھی جیسے کسریٰ کے بازو کاٹ دیے گئے ہو۔ خیمہ گاہ اور بستیاں موت کی بستیاں بن گئی تھی۔ جن گھوڑوں پر ان کفار کو ناز تھا، وہ گھوڑے وہی بندھے ہوئے تھے جہاں گزشتہ شام انہیں باندھا گیا تھا۔ عورتیں الگ بیٹھی رو رہی تھی، بچے بلبلا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے عورتوں
اور बच्चों को खाना दिया जाए। मुजाहिदीन माले गनीमत ला लाकर एक जगह जमा कर रहे थे। सालार अबू लैला के पास एक बहुत ही हसीन लड़की को लाया गया। उसने दरख्वास्त की थी कि उसे सालार आला या किसी सालार के साथ बात करने की इजाजत दी जाए। ये एक सरदार की बेटी है। उसे लाने वाले ने सालार अबू लैला से कहा, सरदार का नाम रबिया बिन बुजैर बताती है। ये अपने बाप की लाश के पास बैठी रो रही थी। क्या नाम है तेरा? अबू लैला ने लड़की से पूछा। साबिहा, लड़की ने जवाब दिया। साबिहा बिनते रबिया बिन बुजैर। मेरे बाप को लड़ने का मौका ही नहीं मिला था। क्या तू यही बात कहने के लिए हमारे सालार आला से मिलना चाहती है? सालार अबू लैला ने पूछा। जिन्हें लड़ने का मौका मिला था, क्या तूने उनका अंजाम नहीं देखा? अब बता, तू चाहती क्या है? तुम लोग मुझे इजाजत नहीं दोगे कि मैं लाशों में एक आदमी की लाश ढूंढ लूं? साबिहा ने कहा। उसका नाम बिलाल बिन अबी अका है। क्या जली हुई लकड़ियों के अंबार में से किसी एक खास दरख्त की लकड़ी को ढूंढ लेगी? अबू लैला ने पूछा। तू उसे ढूंढ के क्या करेगी? जिंदा है तो हमारा कैदी होगा, मर गया है तो किस काम का? साबिहा ने सालार अबू लैला को वो गुफ्तगू सुनाई जो उसके और बिलाल बिन अका के दरमियान हुई थी। कहा कि वो देखना चाहती है कि वो जिंदा है या मारा गया है। मुसलमान सालारों ने चंद ईसाइयों को इस मकसद के लिए जिंदा पकड़ लिया था कि इनसे इस इलाके और इलाके के लोगों के मुतालिक मालूमात और जंगी अहमियत की मालूमात ली जाए। अबू लैला के हुक्म से ऐसे 2-3 आदमियों को बुलाकर बिलाल बिन अका के मुतालिक पूछा। 2-3 रोज पहले तक वो यही था। एक ईसाई ने बताया, वो जोमिल चला गया है। क्या उसे वहां होना चाहिए था या यहाँ? अबू लैला ने पूछा। वो कबीले के सरदार का बेटा है, ईसाई ने बताया। वो किसी के हुक्म का पाबंद नहीं, वो हुक्म देने वालों में से है। क्या वो अपने बाप के खून का इंतकाम लेने आया है? उसने कई बार कहा है कि वो इब्ने वलीद से अपने बाप के खून का इंतकाम लेगा, दूसरे ईसाई ने जवाब दिया। अब बता लड़की, अबू लैला ने साबिहा से पूछा। मैं तुम्हारी कैदी हूं, साबिहा ने कहा। मेरे साथ लौंडियों और बानियों जैसा सुलूक करेगो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकूंगी। सुना है मुसलमानों के दिलों में रहम होता है। मेरी एक इल्तिजा है, मैं एक सरदार की बेटी हूं। क्या मेरी इस हैसियत का ख्याल रखा जाएगा? इस्लाम ने इंसानों को दर्जों में तकसीम नहीं किया जाता। अबू लैला ने कहा। हम उस शख्स को भी अपना सरदार बना लिया करते हैं जिसके आबा व अजदाद ने कभी ख्वाब में भी सरदारी नहीं देखी होती। हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो सरदारी का अहल है और उसका अखलाक बहुत ऊंचा और पाक है और उसको अपनी जात का कोई लालच नहीं। परेशान न हो लड़की, तू खूबसूरत है। ऐसा नहीं होगा कि तुझे जो चाहेगा अपना खिलौना बना लेगा। कोई हिम्मत वाला तुझे खरीदेगा और तेरे साथ शादी करेगा। तुम्हारी कैदी होकर मेरी पसंद और नापसंद खत्म हो गई है, साबिहा ने कहा। अगर मुझे पसंद की जरा सी भी आजादी दी जाए तो मैं तुम में से उसकी बीवी बनना पसंद करूंगी जो सबसे ज्यादा बहादुर है, जो अपनी कौम और कबीले की इज्जत और गैरत पर जान देने वाला हो, मैदान से भागने वाला न हो। औरत का मजहब वही होता है जो उस आदमी का मजहब है जिसकी मिल्कियत में उसे दे दिया जाता है, लेकिन अकीदे दिलों में होते हैं। औरत के जिस्म को मिल्कियत में ले सकते हो, उसके दिल का मालिक कोई नहीं बन सकता। मैं वादा करती हूँ कि मुझे कोई मजबूत दिल वाला और कबीले की गैरत पर दुश्मन का खून बहाने और अपना सर कटवाने वाला आदमी मिल जाए तो मैं अपना दिल और अपने अकीदे उस पर कुर्बान कर दूंगी। खुदा की कसम, तू गैरत और अकल वाली लड़की है। अबू लैला ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि तूने बिलाल बिन अका से जो वादा किया था वो मैं पूरा करूंगा। शर्त यह होगी
कि वो अपना वादा पूरा कर दे। वो हमारे सालार आला खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने हाथों कत्ल कर दे, लेकिन बिनते रबिया इब्ने वलीद के सर पर अल्लाह का हाथ है। उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार कहा है। जोमिल में बिलाल के साथ हमारी मुलाकात होगी। क्या मैं अपने घर में रह सकती हूँ? क्या है उस घर में? अबू लैला ने कहा, वहां तेरे बाप, भाइयों और मुहाफिजों की लाशों के सिवा रह ही क्या गया है। अपने कबीलों की औरतों के साथ रहे, कोई तकलीफ नहीं होगी तुझे। हमारा कोई आदमी किसी औरत के करीब नहीं जाएगा। साबिहा बिनते रबिया बुज़ैर रंजीदा से चाल चलती एक मुजाहिद के साथ उस तरफ चली गई जहां औरतों और बच्चों का रखा गया था। इसकी रंजीदा चाल में और मलूल चेहरे पर तमकनत थी। साफ पता चलता था कि वो आम से किरदार की लड़की नहीं। इब्ने हारिसा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फतह की मुसर्रत से लबरेज लहजे में मुसन्ना बिन हारिसा से कहा, क्या अल्लाह ने तेरी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर दी? ला रोएब, ला रोएब। मुसन्ना बिन हारिसा ने जोशीले लहजे में कहा, कुफ्फार की आने वाली नस्लें कहेंगी कि मुसलमानों ने इनके आबा व अजदाद पर बहुत जुल्म किया था, और हमारी नस्लें इन्हें अपने अल्लाह का ये फरमान सुनाएंगी कि जिस पर जुल्म हुआ वो अगर जालिम पर जुल्म करे तो इस पर कोई इल्जाम नहीं। तू नहीं जानता वलीद के बेटे, इन आतिश परस्तों ने और सलीब की पुजारियों ने जो जुल्म हम पर तोड़े हैं, तू नहीं जानता। तूने सुने हैं, हमने सहे हैं। अब ये लोग अल्लाह की गिरफ्त में आ गए हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, लेकिन हारिसा के बेटे, मैं डरता हूं तकब्बुर और गुरूर से। दिल में बार बार इरादा आता है हज पर जाओ। मैं खाना काबा में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। क्या अल्लाह मुझे मौका देगा कि अपना ये इरादा पूरा कर सकूं? तूने इरादा किया है तो अल्लाह तुझे हिम्मत भी देगा, मौका भी देगा और तुझे बुला लेगा। मुसन्ना ने कहा। कुछ देर बाद तमाम सालार खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने बैठे थे और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इन्हें बता रहे थे कि अगला हदफ जोमिल है। जासूस से जोमिल भेज दिया गया था। पहले यूं होता रहा है कि एक जगह हमला करते थे तो दुश्मन के आदमी भागकर कहीं और इकट्ठा हो जाते थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अब हमने किसी को भागने का मौका नहीं दिया। सीना से शायद ही कोई भागकर जोमिल तक पहुंचा हो, लेकिन जोमिल खाली नहीं, वहां भी दुश्मन मौजूद है और बेखबर भी नहीं होगा। कल रात जोमिल की तरफ कूच होगा और अगली रात वहां इसी किस्म का शबखून मारा जाएगा। तारीखों में यह नहीं लिखा कि सीना में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने किस सालार को छोड़ा। सूरज गुरूब होते ही मुसलमानों का लश्कर जोमेल की सिमत कूच कर गया। सारी रात चलते गुजरी। दिन नशीबी जगहों में छुपकर गुजार और सूरत का सफर खत्म हुआ तो मुजाहिदीन अपने हदफ की तरफ चल पड़े। जोमिल में भी दुश्मन सोया हुआ था। संतरी बेदार थे। यहाँ भी गश्ती संतरियों और दिगर संतरियों को उसी तरीके से खत्म किया गया जो मजी और सीना वगैरह में आजमाया गया था। मुसलमानों की तरतीब वही थी, यानी इनका लश्कर 3 हिस्सों में तकसीम था। यह शबखून भी पूरी तरह कामयाब रहा। मुर्रिख लिखते हैं कि किसी एक भी आदमी को जिंदा न निकलने दिया गया। यहाँ भी औरतों और बच्चों को अलग कर लिया गया था। सालार अबू लैला ने बिलाल बिन अका के मुतालिक मालूम किया। पता चला कि वो एक रोज पहले यहाँ से निकल गया था। ये भी पता चला लिया गया कि जोमिल से थोड़ी दूर रज़ाब नाम की एक बस्ती है जिसमें ईसाइयों की खासी तादाद जमा हो गई है और इनके साथ मदाइन की फौज के 1-2 दस्ते भी हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 हुक्म दिए। एक ये कि सीना से माले गनीमत और दुश्मन की औरतों और बच्चों को जोमिल लाया जाए। दूसरा हुक्म ये कि फौरी तौर पर रज़ाब पर हमला किया जाए। आतिश परस्तों का लड़ने का जज्बा
तो जैसे बिल्कुल सर्द पड़ गया था। मुसलमान तीन इतराब से रज़ाब पर हमला आवर हुए, लेकिन ये घुसा हवा में लगा। रज़ाब बिल्कुल खाली था। पता चलता था कि यहाँ फौज मौजूद रही है, लेकिन अब वहाँ कुछ भी न था। अपने बाप अक्का बिन अबी अक्का का बेटा बिलाल भी लापता था। फौज का एक सवार दस्ता दूर दूर तक घूम आया, दुश्मन का कहीं नाम व निशान नहीं मिला। आखिर फौज वापस आ गई। सीना की औरतें जोमिल में लाई जा चुकी थी। माले गनीमत भी आ गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत मदीना का हिस्सा अलग करके बाकी मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया। अबू लैला ने साबिहा को बुलाया। बिलाल बिन अका यहाँ से भी भाग गया है। अबू लैला ने उसे कहा। उसने अपने बाप के खून का इंतकाम लेना होता तो यूं भागा न फिरता। क्या अब भी तो उसका इंतजार करेगी? मैं अपनी मर्जी से तो कुछ भी नहीं कर सकती, साबिहा ने कहा। अबू लैला खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से बात कर चुके थे। मोरिक लिखते हैं कि इस लड़की की खूबसूरती और जवानी को देखकर सबका ख्याल ये था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इसके साथ शादी कर लेंगे। साबिहा की ये ख्वाहिश भी पूरी हो सकती थी कि वो सबसे ज्यादा बहादुर और बेखौफ आदमी की बीवी बनना चाहती है, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मुझसे ज्यादा बहादुर मौजूद है। चुनांचे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खास पैगाम के साथ माले गनीमत और औरतें मदीना को रवाना कर दी। जो दस्ता माले गनीमत के साथ भेजा गया, इसके कमांडर नोमान बिन औफ शिबानी थे। उन्होंने साबिहा के मुतालिक मदीने में बताया कि ये लड़की कौन है, कैसी है और इसकी ख्वाहिश क्या है। मोरिकों के मुताबिक साबिहा को हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने खरीद लिया। साबिहा ने बखुशी इस्लाम कबूल कर लिया और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके साथ शादी कर ली। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे उमर और साहबजादी रुकैया साबिहा के वतन से पैदा हुई थी। मदाइन में किसरा के महल पहले की तरह खड़े थे। इनके दरो दीवार पर खराश तक न आई थी। इनका हुस्न अभी जवान था, लेकिन इन पर ऐसा तासुर तारी हो गया जैसे ये खंडर हो। ईरान की अब कोई रक्कासा नजर नहीं आती थी। रक्स व नगमा की महफिलें अब सोगवार थी। ये वही महल था जहां से इंसानों की मौत के परवाने जारी हुआ करते थे। यहाँ कुंवारियों की अस्मतें लुटती थी। रियाया की हसीन बेटियों को जबरदस्ती नचाया जाता था। अरब के जो मुसलमान इराक में आबाद हो गए थे, इन्हें फारस के शहंशाहों ने भेड़ बकरियां बना दिया था। इराक फारस की सल्तनत में शामिल था। मुसलमानों को आतिश परस्तों ने दजला और फुरात के संगम के दलदली इलाकों में रहने पर मजबूर कर दिया था। इनकी फसल, इनकी खून पसीने की कमाई और इनके माल व अमवाल पर इनका कोई हक न था। हद ये कि मुसलमानों की बेटियों, बहनों और बीवियों पर भी इनका हक नहीं रहा था। किसरा का कोई हाकिम किसी भी मुसलमान खातून को जब चाहता जबरदस्ती साथ ले जाता था। यही वो हालात होते हैं जो मुसन्ना बिन हारिसा जैसे मुजाहिदून को जन्म दिया करते हैं। मुसन्ना बिन हारिसा को पकड़कर कत्ल कर देने का हुक्म इन्हीं महिलात से जारी हुआ था। और जब इन महिलात में यह खबर पहुंची थी कि मदीने के मुसलमानों का लश्कर फारस की सरहद में दाखिल हो गया है, तो यहाँ से फिरौन जैसी आवाज उठी थी कि अरब की इन बद्दुओं को ये जुर्रत कैसे हुई। थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि फिरौनों के इन महलात में मौत का सन्नाटा तारी था। इनका कोई सालार मुसलमानों के सामने नहीं ठहर सका था। नामी गिरामी सालार मारे गए थे और जो बच गए थे वो भागे भागे फिर रहे थे। मदाइन को बचाओ। अब किसरा के महलात से बार बार यही आवाज उठती थी। मदाइन मुसलमानों का कब्रिस्तान बनेगा। ये आवाज हारे हुए सालारों की थी। वो मदाइन तक आने की जरूरत नहीं करेंगे। क्या तुम अब भी अपने आप को धोखे दे रहे हो? किसरा का जानशीन कह रहा था।
क्या वो मदाइन तक आने की जरूरत नहीं करेंगे जिन्होंने चंद दिनों में 4 मैदान इस तरह मार लिए हैं कि हमारे तजुर्बाकार फौज को खत्म कर डाला है। हमारी फौज में रह क्या गया है? डरे हुए शिकस्त खुर्दा सालार और अनाड़ी नौजवान सिपाही। क्या कोई ईसाई जिंदा रह गया है? मदाइन को बचाओ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की मंजिल मदाइन ही थी। मदाइन फारस की शहंशाही का दिल था, लेकिन मदाइन पर शब खून नहीं मारा जा सकता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जानते थे कि मदाइन को बचाने के लिए किसरा सारी जंगी ताकत दांव पर लगा देंगे, और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ये भी जानते थे कि गैर मुस्लिमों, खसूसन ईसाइयों के कई छोटे छोटे कबीले हैं जो किसी लड़ाई में शरीक नहीं हुए। खतरा था कि आतिश परस्त इन कबीलों को अपने साथ मिला लेंगे और मदाइन के इर्द गिर्द इंसानों की बड़ी मजबूत दीवार खड़ी हो जाएगी। इस खतरे से निपटने के लिए जरूरी था कि इन कबीलों को अपना वफादार बना लिया जाए। इस मकसद के लिए खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने एलची मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों से मिलने के लिए रवाना कर दिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये लोग सोचते क्या है और इनका रुझान क्या है। इन कबीलों पर हमारी धाक बैठी हुई है। एक जासूस ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को तफसीली इत्तिला दी। वह अपनी औरतों और अमवाल के लिए परेशान है। इन्हें किसरा पर भरोसा नहीं रहा और वो नौशेरवा आदिल के दौर को याद करते हैं। एक एलची ने आकर बताया, वो मदाइन की खातिर लड़ने पर आमादा नहीं। इन्हें मालूम हो गया है कि बनी तगलब, नम्र और अयाद जैसे बड़े और जंगजू कबीलों का क्या अंजाम हुआ है। वो इताअत कबूल करने के लिए तैयार है। एक और एलची ने बताया, बशर्त ये कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और महसूलात के लिए उन्हें मुफलिस और कंगाल न कर दिया जाए। खुदा की कसम, वो जो मांगेंगे हम इन्हें देंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या किसी ने उन्हें बताया नहीं कि हम जमीन पर कब्जा करने और यहाँ के इंसानों को गुलाम बनाने नहीं आए? बुलाओ, इन सब के सरदारों को बुलाओ। एक दो मोरिकों ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इराक के तूल व अर्ज में जगह जगह हमला करके और शब खून मारकर तमाम कबीलों को अपना मोती बना लिया था। यह सही नहीं है। हकीकत यह है जो ज़्यादातर मोरिखों ने बयान की है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर इन कबीलों को अपना इत्तेहादी बना लिया था। इनके इत्तेआत कबूल करने में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की दहशत भी शामिल थी। ये खबर सहारा के आंधी की तरह तमाम तर जगहों पर पहुंच गई थी कि मुसलमानों में ऐसी कोई ताकत है जिसके सामने दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी फौज भी नहीं ठहर सकती। ईरानियों के मुतालिक भी इन्हें मालूम हो गया था कि हर मैदान में उन्होंने मुसलमानों से शिकस्त खाई है और ईसाइयों को आगे करके खुद भाग आते रहे हैं। इसके अलावा ईरान के बादशाहों और उनके हाकिमों ने इन्हें जर खरीद गुलाम बनाए रखा है और इनके हुकूक भी गसब किए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनके साथ दोस्ती के मुआहदे करके इनसे इताअत भी कबूल करवा ली और इन्हीं में से अमल मुकर्रर करके महसूलात वगैरह की फारहमी का बंदोबस्त कर दिया। इन्हें मजहबी फ़राइज़ की अदायगी में पूरी आज़ादी दी। इन लोगों ने यह भी देख लिया कि मुसलमान इनकी खूबसूरत औरतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनके साथ मुआहदे में ये शामिल किया कि मुसलमान इनकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। वलीद के बेटे एक कबीले के बूढ़े सरदार ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा था, नौशेरवा आदिल के दौर में ऐसा ही इंसाफ था। यह हमें बड़ी मुद्दत बाद नसीब हुआ है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।